Hey, hi everyone. My name is Yes Yoshi, and today we are going to see basically asexual reproduction and sexual reproduction, right? So let's write the topic asexual reproduction and sexual reproduction, right? So this is our topic, asexual and sexual reproduction. So now in this topic, what is the most important thing to remember or to know is asexual reproduction takes place via spores and sexual reproduction takes place via gametes, right? So is it clear? Okay, so now let's learn in detail about that spore thing and the gamete thing. Many of you people have confusion regarding what is called spores and what is called gametes. So now let's remove all of your doubts. Now let us consider that this is our random organisms, right? This is a random organism and this organism will produce spore. Okay, this spore may be male or female, right? And it can be both. It means that one organism produce both male or female, or it may happen that the single organism may produce either male or female spore. Now that spore which is produced by that organisms will release into the environment, and it is released into the environment, and let us say it is deposited in the soil, right? So now in the soil this multiple spores germinate and produce a body. That body is called as prothallus. What? That body is called as prothallus, right? So basically what I mean to say is you have to consider an organism, and that organism will produce some kind of spores, and that spores will release into the environment and get germinated in the soil, right? And they will produce a prothallus like body, and that prothallus like body, let us consider that this is our prothallus like body. This is a prothallus body, this is a prothallus body. This prothallus body is germinated from the spore, right? So now what happened is that this germinated body or the prothallus will produce gamete. What it will produce? It will produce gamete. This will produce gamete. Okay, so male prothallus will produce male gamete and female prothallus will produce female gamete. So suppose this is male and this is female, right? Now what happens is that the male gamete will now release into the environment, or via the air it will land into the female gamete, right? So now what happened that in detail if we see, there is a male prothallus and a female prothallus. The male prothallus will form a gamete and the female prothallus will also form a gamete, right? So now you have a question that how this gamete fuse with another gamete, right? That process is called as fertilization. Now what happens is that in the male prothallus body is produced, and that body will contain the gamete, right? That is called gametangia. That gametangia will contain the male gamete, and that gametangia will land onto the surface of the female gametangia, right? And that if it will land on the female gametangia, now fertilization will take place, and both the gametes this is the gamete, this is the gamete, they will fuse together to form a zygote, and that zygote will develop into another organism, right? Is it clear? So now many of you have question, right, that what how asexual reproduction comes into the play, and what and how is it different from the sexual reproduction, right? If you see very clearly from the diagram that the spores are produced randomly from any body, right? They don't need any mitosis or meiosis. It's just the simple elongation of the body or the single sporulation or the budding form of a body that will release into the environment, and they will germinate, right? So what happens is that the spores that are formed, they will not fuse together, but they will germinate. So it is the most important concept to know that spores will not fuse together, right? That spores will not fuse together, whether it is male or female, they will not fuse together. They, instead of that, they will germinate, and they will germinate into a body, right? That is called prothallus, and that body will now form a gamete that will fuse together to form a zygote. So spore formation, spore fusion is not true, but the gamete formation is true. So for formation of any organism or any progeny, gametes should fuse together, not the spores. So now, what is the difference between asexual and sexual reproduction? In sexual reproduction, you all know that male has male sex organ, and
female has female sex organ, right? This male sex organ will produce male gamete called as sperm, while the female sex organ produce female gamete known as ovum. In general, we are saying, we are not going into so much deep that ovum, it is not actually it is not ovum, it is secondary oocyte, but let's not go in such deep details, right? So this male sex organ will produce sperm via a process called as meiosis, while the female sex organ will produce ovum by a process called meiosis, right? And both these gamete now will fuse together, both of these gamete will fuse together to form a zygote. Okay, so what happens is, if you see example from our from humans, so this is a uterus, this is fallopian tube, and this is infundibulum, and this is ovary, right? This is fallopian tube, this is infundibulum, and this is ovary. Now during each menstrual cycle, alternate ovaries will produce secondary oocyte, and that will release into the fallopian tube. And if that ovum or the secondary oocyte is released into the fallopian tube, they will now come into the body of the uterus. Okay, so this is the uterus muscle, this is a uterus muscle, right? Endometrium, myometrium, and perimetrium, these are the three types of muscle that is found in the uterus. And this is the vagina, that is the entry point of female womb, and this is cervix. So now what happens, from the vaginal end, sperm will enter, and now they will fuse with the secondary oocyte, and then it will implant in the muscle area of the uterus, right? So in the sexual reproduction, what happens is, directly there is formation of gamete, and that gamete will now fuse together. In humans, spore formation is bypassed. What? Spore formation is bypassed, right? So what does this statement means? This is your ovary, and that ovary has some epithelial cells and some kind of stromal cells, right? So this is called as epithelial cells, and there are some stromal cells, or the matrix is present inside the ovary. We are talking about the ovary as a whole. So now in the ovary, various cells are produced, and that cell will undergo what? The process called as mitosis or meiosis to form gamete, right? This is true. But in the lower organisms or in the plants, if we see, if we focus on the ovary of the lower plants or the higher plants, that ovary will produce spore. What they will produce? Spore. And what is spore? They are the direct continuation of the epithelial cells of the ovary. For example, if we see, suppose this is an ovary of an angiosperm. Now that ovary has some cells, right? This is some cells, and if we see one cell, so suppose this is one cell present in the ovary. So now what happened is, this is the nucleus, and the cell will realize that now it's the time to divide and to proliferate. So now what this cell will do? This cell will increase its N/C ratio, that is the nucleus is to cytoplasmic ratio. So what happens in the nucleus is to cytoplasmic ratio? So suppose, for example, if in the cell, if the nucleus size is much more, it indicates that DNA is now get matured. Okay, so what happens is, cell will realize that okay, my DNA is got matured, and now I have to divide, because I have the genetic material which I can transfer to my progenies. Okay, so now the cell will divide. So what happens? What is the primary stimulus? The primary stimulus is the increased N/C ratio, which forces the cell to divide and to proliferate. So now here mitosis or meiosis will not happen. Here mitosis or meiosis but no, will not happen. It is just simple कि N/C ratio जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, and after that what happens, nucleus will decide that yes, my DNA got so mature, my genes, my chromosomes got so mature that I can segregate them. And now what happens is, the cell will realize, okay, so now let's divide. So the cell will just divide, just segregate its nucleus. That is called asexual reproduction. Here no prophase, metaphase, other things of the mitosis happens, right? So this is what happens in an asexual reproduction. What happens in asexual reproduction? A cell will realize that now it's the time to divide, and that cell will just simply divide without so this cell will just divide. So now what happens in sexual reproduction? Sexual reproduction is just the fusion of two gametes, right? But in the asexual reproduction, there is an indirect fusion of gametes. You see clearly, first there will be spore formation, and that spore will now have to germinate, and after germinate they will contain a body, and that body, that is sporangia, now will produce gametes.
So now that spore will produce gamete, and that gamete now will fuse. So what is the two thing that is happening in asexual reproduction? First is called as spore formation, and number second is gamete formation. Without these two processes, asexual reproduction is incomplete. There are some bacteria or some microorganisms that are present in our environment, and can you name them? Can you name some microorganism that is present in our environment? Yes, I can name them. Suppose there are bacteria, there are viruses, there are parasites, and there are fungi, right? So now if the bacteria produce spores and fungi also produce spores, viruses and parasites will never produce spores. So now what happens is bacteria produce spores as a mechanism of survival, but the fungi will produce spore as a mechanism for reproduction. So what does this statement means? This statement generally means, suppose that this is a table on which you study, right, on which you keep your books, right? This is the table. So now on that table, on the surface of that table, various bacteria are present in an environment. So now in the favorable environment, what happens is that bacteria will now proliferate. They will think that yes, this is the hurrah time to proliferate, because the resources are in excess, and there is no load for the bacteria. So over the time, what happens is that the bacteria will now try to accumulate more and more resources, and they will proliferate more and more. So now due to the accumulation of the resources, what happens is the ultimate production of the toxic metabolites. सब ह्यूमंस में भी यही होता है. What happens is शुरू पे आज से 1800 या 1700 आप चले जाओ एडी में, तो क्या होगा, जो ह्यूमंस थे उन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन ओवर द टाइम व्हाट हैपेंड इज कि हम लोग क्या करें, इसको कंज्यूम करते गए और ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ते गया. वो लोग अपने पीक पे आ चुके थे, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो उससे क्या हुआ, वो लोग कंज्यूम करते गए, जाहिर सी बात है वेस्ट जनरेट हुआ, और वेस्ट जनरेट क्या हुआ, यानी टॉक्सिसिटी डेवलप हुआ, एंड दैट टॉक्सिसिटी विल नाउ किल द ह्यूमंस. बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो पहले के डेट में नहीं था, लेकिन आज के डेट में वो सब बीमारी है. तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स दैट इज नाउ एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरमेंट ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द एक्सेस एक्यूमुलेशन, ड्यू टू द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ द मैटर और द रिजर्वायर्स, राइट? So now what happens is the bacteria will realize that now there is some toxic materials that can kill us. So what the bacteria will do, they will form a surrounding covering made up of para diplocolonic acid. This is the hardest material. So now what the bacteria will do, bacteria will go in the dormant stage. So now the bacteria will go in the dormant stage. So now what do you mean by the dormant stage? Suppose देखो क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको. सपोज करो ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, तो मुझे बताना इस कैंडल में क्या होगा, ये फ्लेम जग रहा होगा. इस फ्लेम को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है. आपने पढ़ा है कि अगर मैं इसको जार के अंदर में रख दूंगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो ये फ्लेम भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इट इज सिंपल, क्वाइट सिंपल. ओके, तो हमारे बॉडी में भी फ्लेम होता है, और उसको मेंटेन, उसको कॉन्स्टेंट रेट में मेंटेन करने के लिए या फ्लेम को जलता रहने के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है. एंड ओवर द टाइम क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे टिश्यूज क्या होता है, डैमेज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल डैमेज, राइट? बहुत सारे टिश्यू क्या होता है, डैमेज होता है. इसीलिए क्या होता है हमारे, आपने देखा, आप पुरानी कथा पढ़ लो, उसमें क्या लिखा होता है कि हर इंसान का सांस जो होता है वो कॉन्स्टेंट है. उसमें लिखा होता है कि इंसान को कितना सांस लेना और कितना सांस नहीं लेना है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार साल जीते थे, बिकॉज वो लोग क्या करते थे, योगा करते थे. योगा करने से क्या करते थे, अपने ब्रीदिंग पे वो कंट्रोल करते हैं. ब्रीथ पे कंट्रोल करते थे तो वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर को इंटेक करते और एक्सेल करते, राइट? सो क्या होता है, जब उनके बॉडी में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो उनके बॉडी में जितना भी मेटाबोलाइट्स है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं अल्टीमेटली देखा जाए तो. और वो लोग अपने बॉडी को ऐसे डॉर्मेंट स्टेज में मेंटेन करते थे, और इसीलिए क्या वो लोग बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते थे. तो बैक्टीरिया भी यही सेम मैकेनिज्म अप्लाई करता है. एंड व्हाट बैक्टीरिया विल डू इज बैक्टीरिया विल फॉर्म अ कोट अराउंड इट्स सराउंडिंग, एंड इट विल गो इन द डॉर्मेंट स्टेज, एंड दैट कोट इज फॉर्म्ड बाय पैराडिप्लोकोलोनिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट्स. So now is the hardest material. So now what you will do, that now you got some information about the, yes, this is the bacteria, and it can produce spores in the unfavorable environment. So what you will do, you will sprinkle some acids to it. Okay, so now this bacteria is resistant to that acids too, that is concentrated HCl. In example, for example, concentrated HCl, the bacteria is resistant, right?
So now what happens is that you are very sure you don't know about anything, you don't know anything about the bacteria, you just sprinkle some quantity of acids, and you thought that yes, the bacteria got killed, and after the time what you will do, you will just rub that acid part, or you will just wash that acid part. So now what will happen, that bacteria will realize yes, the acid is gone and now I can proliferate. So now the bacteria will shed its the spore covering, and again it will come into the active phase, right, active phase of metabolism. So now what is called sporulation in the bacteria, sporulation is the formation of spore in the bacteria for its survival, okay, because the toxic metabolites or any acid that is accumulated due to the degradation by the bacteria, or due to the normal physiological process by the bacteria, or due to any extreme environmental changes, the bacteria will produce a outermost covering that will protect it, okay, from the outermost toxic environment, and after that the removal of the toxic environment, the bacteria will now proliferate. So now what happens is the spore formation in the bacteria are the mechanism of survival. It is not for reproduction. This is the most important point that you need to know. Okay, now in case of fungi, spores are produced as a mechanism for reproduction. So now what does that mean? Okay, so now let's dig into detail. Suppose this is your fungi. This is your fungi. Now what happened, that this fungi will produce spores, and that spores will now germinate in the environment or in the soil. They got dispersed in the environment due to wind, water, or anything. So now they will disperse into the soil, right, and after dispersal they will form a body that we have seen previously, right, and that body will contain a sporangia, and that sporangia contains the gametes, and now that gametes will now transfuse to the female part, and that female part, what happens is that fusion and fertilization will happen, and ultimately now new fungi are formed, right. So this is the mechanism of asexual reproduction. So why this asexual reproduction happened? So now we all know that humans में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, राइट. हम लोग क्या है, पहले सबसे पहले क्या हुआ होगा, बैक्टीरिया हुआ होगा, पैरासाइट्स हुआ होगा, फंगाई हुआ होगा, उसके बाद क्या आया होगा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिर फिशेस आए, ऐसे प्लांट भी आया होगा. तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ. तो शुरू के फेजेस में क्या होता था कि कोई भी पार्ट, बॉडी का जो कोई भी एक पार्ट है, वो क्या करता था, वो स्पोर का फॉर्मेशन कर देता था. वो स्पोर का फॉर्मेशन करने से क्या होता था, वो स्पोर को वो डिस्पर्स कर दे, जैसे ही वो स्पोर डिस्पर्स हुआ वही ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता था. तो ऐसे, और फिर बाद में क्या होगा, गैमेट उसमें लग जाएंगे और गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट. दिस हैपेंड. सो नाउ ओवर द टाइम क्या हुआ, हम लोग क्या, अब देखो आपको बताओ, पुराने जमाने में क्या चरखा चलता था, लेकिन आज की डेट में क्या चरखा चलता है क्या, नहीं चलता. हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मशीनरी से उसको इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली क्या हुआ कि अगर आप सपोज एल्गा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट, जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे ये जो प्रथा है स्पोर फॉर्मेशन की, ये कम होती गई. हुआ क्या है, देखो शुरू के ये, अगर ये मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, फंगाई को छोड़ दो, सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है, इसने स्पोर प्रोड्यूस किया, 5-10 दिन स्पोर प्रोड्यूस करने में लग गए, फिर वो डिस्पर्स हुए ड्यू टू एनी मैकेनिज्म, और वो डिस्पर्स होने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर गए, तो बहुत टाइम लग गया. तो अल्टीमेटली इन द एनवायरमेंट सपोज करो 10 से 15 दिन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, 10 से 15 दिन के लिए स्पोर्स जो है प्रोमिनेंट इन द एनवायरमेंट. एंड नाउ व्हाट हैपन कि 1 या 2 दिन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन हो जाएगा, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इस पार्ट में डोमिनेंट है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो बहुत कम है. लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, प्लांट रियलाइज किया कि देखो भैया, हमको इतना समय खर्चा करना नहीं है, मेरे को फटाफट डिवाइड करना है. जब प्लांट बोलेगा मेरे को फटाफट डिवाइड करना है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा एक काम करो, धीरे धीरे अब मैं स्पोर्स प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मैं बहुत कम टाइम के लिए करूंगा, और मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, गैमेट का फॉर्मेशन कर दूंगा स्पोर्स से. ठीक है, चीज समझ में आ रहा है आपको. लेकिन अब एनजीओ में क्या हुआ, एनजीओ नहीं, एनजीओ में भी यही होता है. एनजीओ में भी क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. आपको पता होगा, जब मैं फ्लावर ले लेता हूँ, तो फ्लावर में क्या होता है, मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल और ओवरी इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है. आपको याद आ रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है माइक्रोस्पोर, और इधर इसमें इसके अंदर में क्या होता है, मेगास्पोर होता है. तो आपको समझ में आया कि एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर माइक्रोस्पोर क्यों है. सो नाउ व्हाट हैपन इज दैट माइक्रोस्पोर जो होता है वो कम टाइम के लिए, मतलब 1 या 2 दिन के लिए बना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोस्पोर हाथों हाथ किस में डेवलप कर गया, वो हाथों हाथ डेवलप कर गया किसमें, गैमेट में डेवलप कर गया. तो मेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, पोलन ग्रेन कहते हैं, मेल गैमेट. अब एक चीज आप समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक माइक्रोस्कोप था, जो माइक्रोस्पोर था जो गैमेट में फॉर्म हो गया, राइट. अब समझ में आया क्यों स्पोर से गैमेट में चला गया. लेकिन प्लांट के केस में क्या हुआ, एंजियोस्पर्म के केस में प्लांट बोलता देखो मेरे को इतना माथापच्ची नहीं करना, मेरे को टाइम को कम करना. तो प्लांट क्या किया, पहले नॉर्मली
क्या होता था, पहले स्पोर बना, वो स्पोर क्या करता था, जर्मिनेट होता था, मतलब वो सॉइल में गिरता था, फिर वो जर्मिनेट हुआ, फिर उसके अंदर स्पोरेंजिया बना, फिर गैमेट बना, फिर फ्यूजन हुआ। अब बोलता है प्लांट नहीं नहीं इतना स्टेप नहीं करना, मेरे को कहीं भी जर्मिनेट नहीं करना, मैं डायरेक्ट माइक्रोस्पोर से क्या बनाऊंगा, गैमेट का फॉर्मेशन करूंगा। क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट माइक्रोस्पोर से गैमेट का फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हुआ, बिकॉज इस फेज में गैमेट जो था वो बहुत लंबे समय के लिए प्रेजेंट था, क्योंकि उसका वाइबिलिटी होता है 72 आवर्स, इनफैक्ट किसी किसी का तो 1 मंथ तक का वाइबिलिटी होता है, किसी किसी का तो 1 साल तक का वाइबिलिटी होता है गैमेट्स का। तो ये गैमेट्स जो फॉर्म हो माइक्रोस्पोर मिली सेकेंड्स या हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन के लिए बना होगा, लेकिन गैमेट्स बहुत दिन के लिए बना, तो दैट इज वाई इधर गैमेट का प्रोमिनेंट होता है, जैसे ही माइक्रोस्पोर बना वो हाथ तो गैमेट में कन्वर्ट हो गया, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। हम कहेंगे कि देखो डायरेक्ट क्या बना, गैमेट बना मेल पार्ट में, डायरेक्ट गैमेट बना फीमेल पार्ट में, हम उसको अवॉइड करते थे बिकॉज 99% हमको गैमेट ही देखने को मिलेगा। हम लोग ये बोलेंगे कि एक गैमेट क्या है दूसरे गैमेट से फ्यूज कर गया, और जब एक गैमेट दूसरे गैमेट से फ्यूज करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक गैमेट से दूसरा गैमेट जब फ्यूज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल में क्या होता है, एक स्पोर क्या बनाएगा, पहले गैमेट बनाएगा, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, राइट। लेकिन मुझे बताना ये जो गैमेट बना ये भी तो क्या स्पोर से ही बना था, हाँ बशर्ते ये बात अलग है कि जो स्पोर है इसका टाइम इंटरवल बहुत कम था, मतलब ये 1 या 2 दिन के लिए स्पोर बना, पर बना तो था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय स्पोर, यस इट इज ट्रू, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमेट, यस इट इज ट्रू। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर, अगर मैं बात करूं तो देखो जो स्पोर्स मेरा एक कोई भी ऑर्गन है उसमें क्या होता है, पेरिफेरल सेल्स होते हैं, कोई भी मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन ले लो, चाहे कोई भी प्लांट ले लो, लोअर प्लांट हायर प्लांट पे ले लो, तो उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। वो स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया आपको। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना, ये स्पोर्स कभी कभार मोटाइल होता है और कभी कभार ये नॉन मोटाइल होता है, कभी ये कोई कभी कभार छोटा होता है, कभी कभार ये जो स्पोर होता है वो बड़ा होता है, राइट। तो आप मुझे बताना ये मोटाइल कब होगा स्पोर। तो एक बात बताओ, जब एक प्लांट का एक लीफ सरफेस है जिसपे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, सपोज करो ये प्लांट है जिसमें क्या ये लीफ सरफेस है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और वो स्पोर जब होगा तो वो हवा के चलते ऑटोमेटिकली वो डिस्पर्स हो सकता है इस सॉइल के अंदर में, तो उसको स्पोर्स का नीड तो है ही नहीं। लेकिन अगर यही प्लांट मेरा पानी में ग्रो करेगा, जब ये प्लांट पानी के सरफेस पे है तो ये स्पोर को रिलीज कर देगा वाटर के अंदर में, तो जब वाटर के अंदर स्पोर रिलीज हो जाएगा तो इसको तैरना पड़ेगा, क्योंकि इधर से क्या बन रहा है, इधर से फीमेल स्पोर्स भी इधर प्रेजेंट है, तो उसको फीमेल के पास जाना पड़ेगा ना। तो इधर क्या चाहिए, उसको फ्लैजेला चाहिए। मतलब जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जब उसको वाटर के एनवायरमेंट में या किसी लिक्विड एनवायरमेंट में चाहिए होता है, तो उधर क्या होता है, मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक और चीज समझना कि जो मेल स्पोर होता है ना, जो मेल स्पोर होता है वो जनरली क्या होता है, मोटाइल होता है और वो स्मॉल होता है। मुझे बताना, अगर एक इंसान को भागना है तो उसको पतला होगा तो ज़्यादा तेज भागेगा कि मोटा होगा तो बहुत तेज भागेगा, पतला होगा तो ज़्यादा तेज भागेगा, बिकॉज उसको अपना बॉडी का वेट होता है कैरी करना नहीं है। तो फॉर दैट रीजन जो स्पर्म होता है कोई होता है वो मोटाइल होता है और वो स्मॉल होता है इन साइज एंड कंपेयर टू द फीमेल गैमेट, राइट। और या फीमेल स्पोर्स, ये मेल स्पोर्स फीमेल स्पोर्स दोनों के बारे में बात करें। देखो हुआ क्या, ये स्पोर्स क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन, एक थैलस का फॉर्मेशन करेगा, नॉट प्लांट बॉडी, एंड दैट थैलस विल नाउ जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेट्स एंड दैट विल फ्यूज। ये मोटाइल स्पोर्स था, नॉन मोटाइल स्पोर्स था। स्पोर्स कभी फ्यूज नहीं करते, मैं पहले से बता रहा हूँ। वो स्पोर्स पहले बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, एंड दैट गैमेट विल नाउ फ्यूज। तो ये स्पोर्स क्या था, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ये बॉडी प्रोड्यूस करेगा, बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, वो भी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हुआ स्पोर्स का, राइट। अब मैं आपको एक फंगाई का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंगाई जो होता है ना, उस फंगाई में भी क्या होता है, स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। तो ये फंगाई में जो स्पोर्स होता है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। क्या, सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब क्या है इसका, देखो मतलब सीधा सा है कि सपोज करो ये एक फंगाई है, इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है, ठीक है। इस पेनिसिलिन में क्या होता है, कॉनिडियाज प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, मतलब ये पेनिसिलिन, इसका मन के डिवाइड करना तो क्या करेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं, वी कॉल देम एज कॉनिडिया। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कॉनिडिया इज प्रोड्यूस एंड नाउ दैट कॉनिडिया विल नाउ डिस्पर्स इनटू द एनवायरमेंट, एंड आफ्टर द जर्मिनेशन दे विल प्रोड्यूस अ थैलस लाइक या प्रोथैलस लाइक बॉडी, एंड दैट विल कंटेन gametangia, and that gametangia will now contain gametes, and that will fuse to form another पेनिसिलियम, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये पेनिसिलियम से क्या ऑब्टेंड होता है, पेनिसिलिन ऑब्टेंड होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्टेंड किया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जेनेटिकली कमर्शियली हम लोग पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को ऑब्टेन नहीं करते, बल्कि हम पेनिसिलियम क्राइजेंथेमम से ऑब्टेन करते हैं, राइट। सुनाओ, लेकिन हुआ क्या, कुछ कुछ फंगाई जो होते हैं वो बहुत बदमाश होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें क्या हुआ ना,
ये जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझना, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे, कि सपोज करो ये एक एस्कोमाइसिटिस का फंगाई था। ये एस्कोमाइसिटिस का फंगाई है, इसने डिसाइड किया कि चलो मेरे को रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन मेरे को क्या करना है, फटाफट रिप्रोड्यूस करना है। तो क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो क्या होगा, मिली सेकंड के लिए होगा, माइक्रो सेकंड के लिए होगा, वो मिली सेकंड के लिए होगा। जब स्पोर का फॉर्मेशन मिली सेकंड के लिए हो जाएगा तो बताना उससे क्या होगा, डायरेक्ट गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा विदाउट जर्मिनेशन। और अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट जर्मिनेशन तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरा बात भी सही होगा, देखो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स लग रहा है और असेक्सुअल में भी लग रहा है। लेकिन फंगाई के केस में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, ये क्या है, ये सेक्सुअल स्पोर्स है। जनरली क्या होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होता है, सेक्सुअल गैमेट के जरिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके जरिए हुआ, स्पोर्स के जरिए हुआ। ठीक है, तो मना मत करना। ऐसे देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया गैमेट ही हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोग को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए ये जो स्पोर्स है देखने को मिलता है, दैट इज वाई वी कॉल देम एज व्हाट, सेक्सुअल स्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स हमको एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ, जू स्पोर्स। तुमको कंफ्यूजन होगा, इफ यू एवर रीड एनसीईआरटी तो वहाँ पे ये जू स्पोर्स हो गया, ये ऊ स्पोर के बारे में लिखा हुआ होता है। देखो होता क्या है ना, ये जो जू स्पोर्स होता है, जू मतलब क्या हुआ, जू मतलब देखो जूलॉजी मतलब क्या हुआ, एनिमल्स हो गए, यानी लोअर एनिमल्स हो गए। तो मतलब जितने भी एनिमल्स के बारे में या बात करूंगा, अगर उनमें जो स्पोर प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट स्पोर इज कॉल्ड एज जू स्पोर्स। समझ में आ गया, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, और उसके अंदर में जू स्पोर्स में बहुत सारा स्पोर्स हो सकता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, ऊ स्पोर्स के बारे में अगर बात करूं तो ऊ स्पोर्स एक सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर का मतलब, अब मुझे बताना, कभी भी सेक्सुअल स्पोर आ जाए तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो कुछ टाइम के लिए स्पोर बना, वो स्पोर बाद में गैमेट बन गया। अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हमको भाव देना है, असेक्सुअल को भाव नहीं देना, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए बने। ठीक है, तो ऊ स्पोर नाम देखो, स्पोर है पर वो सेक्सुअल है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो ऊ स्पोर है, ये हाथ को गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये ऊ स्पोर का वायबिलिटी जो था बहुत कम होता है, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि स्पोर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हुआ। ठीक है, राइट। इसके बाद एक चीज़ आप नोटिस करना, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी में जब आप प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशंस में जाओगे तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फंगाई जो होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स दोनों प्रोड्यूस करता है, जो आप समझ गए होगे। तो ये सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद देखना डायरेक्ट एक पॉइंट दिया है कि फर्टिलाइजेशन का, कि वो लोग में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। तो आपके मन में आएगा कि भैया देखो ये तो पहले स्पोर का फॉर्मेशन करा, तो गैमेट का फ्यूजन कहाँ से हो गया। अरे भैया जो स्पोर्स था वो बाद में क्या गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि फ्यूज हो गया। समझ में आ रहा है बात, तो वो पेज को पढ़ना फंगाई वाला आज ही जाके, राइट। जूस्पोर हो गया। So now this is all about sexual reproduction and asexual reproduction. There are three modes of reproduction: sexual, asexual and vegetative mode of reproduction. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को और एग्जाम्पल दो। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो एक होता है तुम्हारा बडिंग इन हाइड्रा। देखो बडिंग जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बडिंग इन हाइड्रा जो होता है वो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक प्लांट बॉडी है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा टेंटिकल्स लगा हुआ होता है और एक माउथ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक जस्ट एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाता है जो सेपरेट हो जाएगा और एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बडिंग। सो दिस इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस में क्या होता है, गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखो स्पॉन्जेस में क्या हुआ, ये स्पॉन्ज का क्या हुआ, एक बॉडी था, इसके अंदर में क्या हुआ, बॉडी से हो जाएगा। चलो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करना है मुझे, तो स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा, एंड दैट स्पोर इज कॉल्ड एज गेम्यूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गेम्यूल्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर्स और असेक्सुअल स्पोर। गेम्यूल इज एन असेक्सुअल स्पोर, एंड इसके जरिए क्या होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और अगर मैं एग्जाम में एक और क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस क्वेश्चन है कॉनिडिया के ऊपर में। किसके ऊपर है, कॉनिडिया के ऊपर है। कॉनिडिया जो होता है वो क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेट्स। देखो स्पोर्स से क्या बनता है, गैमेट बनता है, राइट। समझ में आ रहा है। गैमेट जनरली क्या होता है, डायरेक्ट भी बन सकता है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, जो स्पोर का फॉर्मेशन है हम उसको टोटली क्या कर चुके हैं, हम उसको बाईपास कर चुके हैं, हमारे अंदर कोई भी स्पोर नहीं, तो डायरेक्ट गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्लांट में यहाँ तक कि एंजियोस्पर्म में भी एकदम हायर प्लांट है, एकदम मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, उसके अंदर भी पहले कुछ टाइम के लिए स्पोर बनेगा, बाद में क्या बनेगा, गैमेट बन जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भले उसमें स्पोर क्यों नहीं बन रहा हो। फंगा के केस में क्या हमने सीखा, फंगा के केस में हमने ये सीखा कि भैया देखो इसके अंदर में सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, मतलब स्पोर्स जो होते हैं ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करे, बिकॉज जो स्पोर्स प्रोड्यूस होगा बहुत कम टाइम के लिए हुआ, तो अल्टीमेटली गैमेट ज़्यादा टाइम के लिए मेरे को अवेलेबल है, तो दैट इज व्हाई दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके एग्जांपल क्या, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस। सो दिस, अब एक और एक चीज़ है, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो प्लांट किंगडम में
ये आया एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या होता है, तुम्हारा असेक्सुअल स्पोर्स होता है वो डोमिनेंट होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल होता है बहुत कम, मतलब स्पोर्स का लाइफ साइकिल का तो बहुत कम हो जाता है, और वहाँ पे लाइफ साइकिल स्पोर्स का जो वाइबिलिटी था बहुत कम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, गैमेट देखने को मिलेगा। सो दैट इज द जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइटा में मेजरली हम लोग क्या देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वाया स्पोर्स। एनसीईआरटी लिखती है कि एल्गा में से क्या हुआ, एल्गा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग नहीं, जब आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है कि एल्गा में क्या हुआ, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ये भी लिखती है कि आइसोगैमेट्स, एक डायग्राम दिया हुआ है, आइसोगैमेट फॉर्मेशन, आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, मतलब डायग्राम की, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है क्लैडोफेरा का, और उसमें बताया है कि देखो भैया ये एक आइसोगैमेट है। तो आपके मन में सीधा क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया देखो एल्गा में तो क्या था, स्पोर्स था, तो गैमेट कहाँ से आया? अरे मुन्ना, जो स्पोर्स था वही बाद में जाके गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा, और हम लोग क्या देख रहे हैं, गैमेट को देख रहे हैं। जो स्पोर्स है वो भी क्या है, मोटाइल, और जो गैमेट है देखो वो भी क्या है, मोटाइल, और ये दोनों गैमेट क्या एक जैसे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है किसी किसी प्लांट में इनफैक्ट ह्यूमन में भी हम लोग डिफरेंशिएट तो कर नहीं पा रहे, तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं या जो गैमेट्स होते हैं इनका साइज में वेरिएबिलिटी होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो just enjoy. Thank you.